everyone, welcome back to Mobile Chemistry classes. Now today we are going to start today's topic for class 12th from the solid states. Now let's we start. First of all, in last video we have discussed that the lattice points and unit cell. What is unit cells? The smallest three-dimensional unit which can form lattice after repetition again and again. In last video we will discuss that the arrangement of the constituent particles, that is, and now from this we can form a lattice after repeat and repeat again the unit cells. And here we know that these points are known as lattice point, and here now this is a unit cell which can form lattice after repetition again and which can form lattice after repetition again and again. उसी तरह से हम नेक्स्ट में भी इसको क्या फॉर्म कर सकते हैं, इसी तरह का एक और यूनिट सेल फॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ जो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज द यूनिट सेल एंड दिस इज द लैटिस पॉइंट एंड दिस इज द कंप्लीट इज द लैटिस. नाउ दिस टॉपिक इज दैट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. There are mainly two types of unit cells. Types of unit cell. There are mainly two types unit cell. Now that first is primitive unit cell and or simple unit cell. Simple unit cell. And now the second is centered unit cell. Now there are also three types of centered unit cell, that is face centered, and body centered, and now the third is end centered. Now we will discuss one by one in briefly what is primitive unit cell or simple unit cell, what is face centered unit cell, what is body centered unit cell, and what is end centered unit cell. Primitive or simple unit cell.
सिंपल यूनिट सेल्स के अंदर अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग जो सिंपल यूनिट सेल ली गई है दैट इज द क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ इन क्यूबिक यूनिट सेल here साइड A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, सारी की सारी साइड्स मतलब जो लेंथ है, हाइट है एंड ब्रेथ है वो तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। और एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा एंड गामा दैट इज इक्वल टू 90 degree. In the case of simple unit cell, such we can see that here from the diagram that this is the cubic unit cell. Yeah, here length, breadth and height are equal. Now here this is the length, okay, and this is the breadth and this is the height. So now from here we can say that here length, breadth and height which are equal and angles alpha, beta and gamma is equal to 90 degree. Now here इस simple unit cells के अंदर क्या होता है कि कोई भी unit cell को simple unit cell कब कहेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन ए सिंपल यूनिट सेल्स। तो इन सिंपल यूनिट सेल्स एटम्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन एट द कॉर्नर। सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं सिंपल यूनिट सेल में, कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब मान लीजिए जस्ट लाइक एज आप यहाँ ये रूम है तो इस रूम में अगर आप जहाँ बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो तो वो भी क्या एक सिंपल यूनिट सेल है। अगर आप उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट देखना चाहते हो तो वो तीनों क्या होंगी, इक्वल हो उस रूम की, उस रूम को हम क्या कहेंगे, सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। तो वहाँ उस रूम में देखिए आपके पास कितने कॉर्नर प्रेजेंट है। हमने कहा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए सिंपल यूनिट सेल्स। नाउ इन सिंपल यूनिट सेल्स atoms are present only at corner. So how many corners are present in a simple unit cells? Now there are 1, 2, 3 and 4. 4 कॉर्नर ऊपर है एंड 4 कॉर्नर नीचे। 1, 2, 3 एंड 4। 4 और 4 कितने हो गए, 8 कॉर्नर हो गए। तो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर प्रेजेंट इन ए सिंपल यूनिट सेल? नाउ देयर आर 8 कॉर्नर्स आर प्रेजेंट इन ए सिंपल यूनिट सेल। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से दैट in simple unit cell corner are that is equal to 8 and number of atoms present at one corner। एक कॉर्नर पर कितने एटम्स का कितना पार्ट वहां प्रेजेंट है देखने के लिए कि मान लीजिए यहाँ 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 कॉर्नर है और इन 8 कॉर्नर्स के ऊपर क्या रखे हैं हमने, कोई भी एटम रखा है। मान लीजिए यहाँ अगर हम इस कॉर्नर को लेकर चलें तो इस यूनिट सेल के अंदर इसका कितना पार्ट है इस एटम का, क्योंकि आधा पार्ट तो यहाँ से क्या है, बाहर ही है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से। अगर हम इस वाले कॉर्नर की बात करें देखिए तो यहाँ पे अगर हमने ये मान लीजिए जो स्फेरिकल है ये क्या है, एक एटम है, तो यहाँ पे सिर्फ इस एटम का इतना ही पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है, बाकी सारा तो कहाँ है, बाहर है। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट ओनली एट कॉर्नर, एक कॉर्नर के ऊपर कितना है। मान लीजिए इसको समझने के लिए आप एक बॉल लीजिए, ठीक है, और उस बॉल को आधा कट कर दीजिए और मान लीजिए आपने जो वो बॉल ली है वो आधे कट कर दी, इतनी तो वो आपने बिल्कुल कट कर ही दी, ठीक है। इतनी कट करने के बाद मान लीजिए ये बॉल लिया आपने और इतना कट कर दिया और इस कट करे हिस्से को आपने यहाँ उठा के रखा। अब भी आपको क्या दिखाई देगा कि जैसे ही आपने कट किया उसको इस तरह से, यहाँ से ये जो बॉल है तो इसका ये वाला हिस्सा बीच में से ओनली एक साइड का जो हिस्सा है वो ही, सिर्फ इतना हिस्सा ही तो है इस यूनिट सेल में। तो यहाँ ये कौन सा हिस्सा है, कितना हिस्सा है ये इस हाफ का, दैट इज 1/4। हाफ का कितना हिस्सा है ये,
1/4। भाई एक हाफ बॉल में से हम ऐसे कितने कर सकते हैं भाई, इस तरह से ये है हमारे पास, है ना, और ये हाफ है मान लीजिए, ठीक है, यही होगा भाई। दो साइड तो आपको दिखाई देंगी, लेकिन दो साइड ये वाली भी तो होंगी ना, तो यहाँ इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो एटम है यूनिट सेल के अंदर सिर्फ यही हिस्सा है, तो ये कितना है, दैट इज 1/4। अब हाफ का 1/4 है तो कंप्लीट का कितना होगा, 1/8। कितना होगा, 1/8। नाउ दैट इज 1/8 एटम, ठीक है। एंड नाउ फ्रॉम हियर नंबर ऑफ atoms present at all corner। एक पे 1/8 है और टोटल कॉर्नर कितना है, 8 है, तो दैट इज 1 एटम, यानी कि जो 8 कॉर्नर हैं उन पे कितने एटम प्रेजेंट हैं, ओनली 1 एटम प्रेजेंट है। Now this is the simple unit cell where the number of atoms are present at the corner only 1. Now the next is face centered unit cell। Face centered unit cells। Now in face centered unit cell is that cell in which number of atoms present corner as well as face of the cubic unit cell। Face centered face centered unit cell is that in which number of in which atoms are present corner as well as face of a cubic unit cell। Face of a cubic unit cell। Now here the question is raised that how many face are present in a cubic unit cell या simple unit cell। तो कितने फेस होंगे, आप देखिए यहाँ पे फेस क्या है, मतलब जो बिल्कुल सामने हो, तो 1 2 3 4 एंड 5 और 6, ये क्या है, आमने सामने वाले जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, दैट इज द फेस। तो ये 1 2 3 4 5 और 6। Now how many faces are present in a cubic unit cell? Now there are 6 faces are present in a cubic unit cell। Now from here we can say that, and number of atoms present at corner that is equal to 1। अभी हम पढ़कर आए हैं पीछे, और अगर हम बात करें फेस के ऊपर तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ एटम्स present at face। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं हम, ये ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल यूनिट सेल है। तो यहाँ इसके जो फेस होंगे वो फेस कौन कौन से होंगे भाई, एक तो ये वाला हिस्सा 1 और ये 2 3 और 4, 1 2 3 4 और ये एक
5 और इसके बिल्कुल जस्ट नीचे दैट इज 6। ठीक है, यहाँ जैसे ऊपर का अभी ये 3 डायमेंशनल में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये जैसे ऊपर है तो बिल्कुल जस्ट इसके नीचे भी होगा ना एक ऐसा ही फेस जहाँ हम खड़े हैं, तो दैट इज 6th फेस। तो यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए कि यहाँ 6 फेस है, तो 6 फेस पे हम कितने एटम्स रख सकते हैं भाई? 6 ही रख सकते हैं। 1 2 3 4 और 5 और एक 6। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो एटम है ये कितना अंदर है और कितना बाहर। भाई 6 पे है और एक पे कितना है? हाफ पार्ट है उस एटम का। एक पे कितना एक फेस पे कितना एटम प्रेजेंट है? हाफ एटम प्रेजेंट है। तो टोटल फेस पे कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 6 फेस है तो 3 एटम्स, यानी कि 1/2 इंटू में 6, क्योंकि एक पार्ट पे एक फेस पे कितना एटम प्रेजेंट है? हाफ एटम अंदर है और हाफ एटम कहाँ है? बाहर है। तो नाउ फ्रॉम हियर फेसेस, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट फेस, फेस कितने हमारे पास? 6 है। और कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक फेस के ऊपर? 1/2, तो दैट इज द 3 एटम्स। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम हियर टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in FCC। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड cubic unit cell, face centered cubic unit cell। Now there is number of atoms present corner as well as on face, so 1 plus 3 that is equal to 4 atoms। ठीक है, now the this is a face centered unit cell। Now the next is body centered unit cell। In body centered unit cell, the atoms are present at corner as well as are present at corner as well as in body of unit cell। Now how many atoms are present in a body centered cubic unit cell? That is, first of all, number of atoms present at corner, that is equal to 1, and number of atoms present in body of unit cell, in a body of unit cell। Now this is a unit cell। तो यहाँ पे इस बॉडी के अंदर यहाँ मान लीजिए कोई एटम प्रेजेंट है, तो कितने एटम प्रेजेंट होंगे देखना इस यूनिट सेल के अंदर। कंप्लीट एटम क्या है उस यूनिट सेल के अंदर है, तो कितना होगा? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी यूनिट सेल दैट इज 1। नाउ total number of atoms present in BCC, that is 1 plus 1, 2 atoms।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल is that unit cell in which the number of atoms present on at the end of the unit cell or as well as at the corner. In and centered unit cell, the atoms are present at the corner as well as end of the cubic unit cell. क्यूबिक यूनिट सेल के एंड पर और कॉर्नर पर जहाँ एटम प्रेजेंट होंगे उस क्यूबिक यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। आप कोई भी दो एंड उठा लीजिए, जो मान लीजिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये यहाँ से शुरू और यहाँ पे खत्म, तो ये क्या हो गए? एंड पॉइंट हो गए। तो एंड पॉइंट्स कितने होंगे? 2 ही होंगे। अगर आप ये वाले उठाओगे तो यहाँ पे भी 2 होंगे, अगर आप ऊपर से नीचे तक उठाओगे तो भी ये क्या होंगे? 2 ही होंगे। तो वहाँ एंड पॉइंट्स के ऊपर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर के ऊपर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, that is equal to 1 atom. And number of atoms present at two ends of a cubic unit cell. देखिए आप यहाँ कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? एक क्यूबिक यूनिट सेल है यहाँ इस तरह से। तो मान लीजिए हमने ये वाला एंड और ये वाला एंड उठाया, तो इस एंड के ऊपर अगर हम कोई एटम रखते हैं मान लीजिए, तो यहाँ वही सेम कि यहाँ इस एटम का कितना पार्ट उस यूनिट सेल के अंदर है? दैट इज द हाफ पार्ट। और कितने एटम्स हैं? कितने एंड हैं? 2 एंड्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट 2 एंड्स ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 2 एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन एक एटम का कितना पार्ट है? 1/2। तो 2 का कितना होगा? 1/2, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो नाउ फ्रॉम हियर टोटल नंबर ऑफ एटम्स present at and centered cubic unit cell ECC. Now that is equal to 1 plus 1, that is 2 atoms. कितने atoms present होंगे? 2 atoms present होंगे। Now I hope आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।